Hello everyone, I am Sadiksha Chhetri, student of Chameli Devi Group of Institution, and today we have here Dr. Varun Kesari sir, academic head of MBA department. We welcome you sir. Thank you, Sadiksha. Sir, the first question student have is very simple. Why MBA in this AI driven world? What makes it still valuable? Very well said. See, MBA is actually a driven concept. You cannot come up with absolute things. If you talk about MBA, as an MBA, आपका रोल और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि AI आया है. Right? AI will give you deep insights on any kind of thing, whatever reports you are generating. But to interpret in a human way, to apply it, to go for strategic management, to go for other initiatives, you need behavioral inputs from people who have worked on this. So, if I see, so MBA has evolved with AI. The role of MBA gets bigger and better in the organizations who are working with AI-enabled workforce. So I would say this is getting more responsible. The students who are seeking to do MBA, they should be AI-enabled MBA students seeking admissions, or they are looking for jobs in the corporate. Sir, what are the misconceptions students have before joining an MBA program? Okay. See, based on recent counseling or recent conversations which I generally have with the students, they generally ask that after doing MBA they will get a very high paying job, right? That's the first misconception. हम generally तीन बातों की मैं बात करूँगा इसमें. पहला, high paying jobs के लिए they are more focused. Second, they feel that coming from a commerce background, coming from a BBA or any other relevant commerce background, these people are more successful in doing MBA. Right? That's another misconception. Third misconception is being good into academics only, like getting good exam scores, good internal assessment, and that will give you a high yielding jobs. So ये तीन basic misconception है जो generally students हमसे पूछते हैं. To solve this answer, I would say the first and the foremost thing, MBA के केस में high paying job से ज़्यादा important है आपका evolve होना. That maturity to handle people, that leadership quality, एक overall persona जो है वो आपका वो MBA के बाद ट्रांसफर होता है. इसलिए आप देखोगे MBA के केस में clear guidelines है that any graduate can do MBA. Right? That's why we say कि MBA जो है it is about personality change. वो आपको इवॉल्व करता है, मैच्योर बनाता है, आपकी डिसीजन थिंकिंग चेंज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बदलती हैं. सो MBA इज नॉट ओनली अबाउट हाई पेइंग जॉब्स. Eventually, of course, you will get a high-paying job once you start applying this thing. Second misconception that coming from a commerce background. So I would say एक MBA क्लासरूम जो एक आइडियल MBA क्लासरूम होता है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्लासरूम होता है. वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स फ्रॉम आर्ट्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम साइंस मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, राइट? मल्टीपल बैकग्राउंड के जब स्टूडेंट्स किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ काम करते हैं, सो यू गेट डिफरेंट डायमेंशंस ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाट एन MBA हैज टू लर्न. तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम अगर आप एक क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे एक ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्ट मी दैट इज नॉट द प्लेस वेयर यू विल एक्चुअली गेट इवॉल्व. योर पर्सनालिटी विल नॉट चेंज. आपका जो थिंकिंग है, सोच है डायरेक्शन की, वो एक कॉमर्स स्टूडेंट की तरह रह जाएगी, या एक BBA के स्टूडेंट की तरह रह जाएगी, या अगर आप सिर्फ सारे इंजीनियर्स मिलकर MBA करने की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग अप्रोच रह जाएगी. वहाँ पर आर्ट्स की अप्रोच नहीं आएगी, वहाँ पर साइंस का अप्रोच नहीं आएगा. वहाँ हमें तो एज एन MBA स्टूडेंट वी रिक्वायर डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स. थर्ड मिसकंसेप्शन, academically strong. Although academics do play an important role in clarifying initial campus placements, but exposure and experience is equally important. That adds value. जैसे अगर मैं बोलूँ कि doing a plain vanilla MBA will not get you good jobs, will not transform you. But with academics, if you are going for internships, on-job trainings, project works, field works, research, and doing some product, live projects with companies जिसमें आप लाइव प्रॉब्लम्स जो होती हैं अगर आप उसके हिस्सा बनते हो, उनको सॉल्व करते हो, सो दैट गिव्स यू अ गुड एक्सपोजर. तो ये तीन जो मिसकंसेप्शंस हैं ये स्टूडेंट्स को इरेडिकेट करना चाहिए, एंड दे शुड हैप्पीली opt for MBA as a PG course. So, what habits do a successful MBA student develop during their MBA program,
And what is that one thing the student underestimate but later realize made a huge difference in their career? ओके, सो दीक्षा, मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करूँगा. इसके अंदर मैं सक्सेसफुल वर्ड हटाऊंगा. एक सक्सेसफुल एमबीए स्टूडेंट की हैबिट्स की जगह मैं बोलूँगा जनरली एमबीए स्टूडेंट्स किन हैबिट्स पे फोकस करते हैं, एंड देन आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि वो किन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उस पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, विच एक्चुअली लेटर दे रियलाइज, राइट, विच यू हैव आस्क्ड फॉर. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टीचिंग बियॉन्ड क्लासरूम्स, which an MBA student exactly focuses on. Right? Apart from teaching, they focus on newspaper readings, business news analysis, problem solving activity, leadership activities, right? जितने कॉलेज में इवेंट्स होते हैं उनको लीड करना, मैनेज करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके एक हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं. सो दिस इज़ नॉट वी से कि वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए करिकुलम के साथ कंपल्शन है, दैट दे नीड टू लर्न, दे नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड एक हैबिट जो एक एमबीए स्टूडेंट में हो जाती है, अगर मैं बोलूँ थर्ड सेमेस्टर तक आते आते, दे स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग. You will never find an MBA student saying कि I am from this background so I am not able to understand this. Even if they are going to an operations industry coming from BCom, right, they will go and understand how machines पे काम कैसे होता है, वो उसको समझेंगे, right? So that is something they get change, जो उनकी हैबिट में चेंज आता है. Now, जब मैं MBA कर रहा था, मैं तुम्हें सुदीक्षा एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्यों पता चला कि हम किस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे तब पता चला जब मैं एक्चुअली आई ऑल्सो जॉइन द इंडस्ट्री. कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज टू बी मोस्टली वर्कड अपॉन. इस पर बहुत काम करना चाहिए था. आई जॉइंड एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन अ बैंक व्हेन आई वॉज प्लेस्ड इन कंपनी. तो तब मुझे पता लगा, क्योंकि ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, रिलेशनशिप मैनेजर. No, I was very good at finance things. I was very good at making products sell, making things done. बट वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, जो मेरी फैकल्टी ने मुझे चीज़ बताई थी कि व्हेन यू आर डूइंग MBA, आप अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम करते हो, आप सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेते हो, कोर्स स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा हो जाता है, एंड देन यू कम अप एंड वर्क विद पीपल हु हैव दीज टेक्निकल नॉलेज, हु आर कमिंग फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स, राइट. तो एक हार जो होता है ना गले में, जब आप पहनते हो मोतियों का हार होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्कुल वैसे ही होता है. उसमें एक सेंट्रल पेंडेंट होता है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको दिखता है, मैनेजरियल कमिटी होती है, और बहुत सारे मोती होते हैं, राइट. वो मोती हर एक डिपार्टमेंट है, राइट. सो देन आई आस्क्ड माय फैकल्टी, तो फिर इसमें MBA कहाँ होता है? आई थॉट दैट्स द पेंडेंट इज द MBA, राइट. ही सेड नो बेटा, वो जो धागा है ना वो MBA है, जिसके कारण ये हार है, अदरवाइज दे विल बिकम इंडिविजुअल. तो एज एन MBA what is needed is that leadership skill and that communication skill which binds your team, जो उनको टीम की तरह काम करने के लिए इकट्ठा कर सके. तो दैट इज समथिंग एन MBA एज एन MBA स्टूडेंट उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और अपनी सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनल एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये जो चीज़ें हैं, इसको सिर्फ प्लेसमेंट पाने तक के लिए सीमित कर लेते हैं कि GD अच्छा हो जाए, PI अच्छा हो जाए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हेन यू गो इनटू द मार्केट, दिस इज द मेन थिंग विच एक्चुअली हेल्प्स यू. और इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि AI के आने के बाद MBA का रोल क्यों और ज़्यादा इवॉल्व होता है. दैट्स द रीज़न दिस थ्रेड एंड ये जो स्टोरी है, दिस एक्चुअली प्रूविंग नाउ, जो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो अपनी टीम को इकट्ठा करके चल पा रहे हैं, दे आर रियली डूइंग वंडर्स इन द मार्केट. So I hope this solves your one's query. Yes, now we know what not to underestimate. Right. So, as you said, the MBA program is very diversified. There are students from different backgrounds, be it arts, science, or commerce. So, as a student, how do we choose our specialization? Do we do it before we take admission or during the course? That is really something important जो स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. You raised really a good question यार. देखिए, MBA में आपको स्पेशलाइजेशन 2 बार सिलेक्ट करने का मौका मिलता है. एक अलाइड कोर्सेज होते हैं, जैसे MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट. MBA इन स्पेशलाइज्ड ब्रांच, तो वो एडमिशन टाइम पे आपको सिलेक्ट करना होता है. दूसरा ऑप्शन होता है आप जो कोर MBA जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप फर्स्ट ईयर जो है आप सारे कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, एंड देन इन थर्ड सेमेस्टर यू गो फॉर अ स्पेशलाइजेशन. तो ये दोनों समय हो सकता है. अगर किसी स्टूडेंट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कोर में एडमिशन्स लें. पहले और सेकंड सेमेस्टर के अंदर दे शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड द फ्लेयर ऑफ व्हाट एक्जेक्टली MBA सब्जेक्ट्स आर, एंड देन दे कैन टेक देयर इंटरेस्ट
based on their interest. And those students who are coming from a commerce background, जिन्होंने BBA किया है, they have some understanding, तो they can generally go for initial level पे, वो लोग admission time पे they go for specialization. To choose a specialization, again स्वदीक्षा मैं 3 पॉइंट की बात करूंगा. पहला है आपका इंटरेस्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर थिंग, आपका इंटरेस्ट अगर आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, यू लाइक कन्विंसिंग पीपल, यू लाइक टॉकिंग टू देम, यू लाइक अप्रोचिंग टू देम, यू नो मार्केटिंग कुड बी एंड सेल्स कुड बी अ गुड प्रोफाइल फॉर यू, तो ये एक आपका इंटरेस्ट है. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, डेटा एनालिसिस आपका फोटे है कि आपको इसमें बड़ा मजा आता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो इनटू फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स में चले जाइए. यू आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो बिजनेस एनालिटिक्स कुड बी योर फोर्टे, ऐसा हो सकता है. तो पहली चीज तो हो गई इंटरेस्ट. दूसरा ये होता है आपकी स्ट्रेंथ, राइट. वी शुड आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ फर्स्ट, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज माय यूएसपी. एवरी पर्सन इज बोर्न विद सम यूएसपी. हर एक के पास कोई ना कोई यूएसपी होती है. कोई व्यक्ति कम बात करता है बट उसका एनालिटिकल स्किल्स जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. तो दे शुड ऑप्ट अकॉर्डिंगली कि आप अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ को मैचअप करिए. ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज जो बदलती रहती है वो है इंडस्ट्री के ट्रेंड्स. जैसे आपका पहला क्वेश्चन था मुझसे कि सर अभी एआई आया है, अब ये इंडस्ट्री ट्रेंड है. और तीसरा पॉइंट जो है, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस टू, इट कम्स द इंडस्ट्री ट्रेंड्स. अब जैसा आपने अभी मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि सर एआई आया है, तो एआई क्या है स्वदीक्षा? एक इंडस्ट्री ट्रेंड है, राइट. एंड दिस इज गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म. एक ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है. जब कंप्यूटर आया था तब एक ट्रेंड आया, राइट. उसके बाद चीजें बदलती हैं. कोविड के बाद एक अलग ट्रेंड आया, वर्क फ्रॉम होम आपने देखा है, राइट. सो वी हैड टू मैनेज पीपल विद डिस्टेंस. तो अब ये जो ट्रेंड आया है, तो आप देखिए कि आपका पहली चीज क्या थी, आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपकी स्ट्रेंथ, और तीसरा ये ट्रेंड है. तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्ट्रेंथ मैच करती है, वेल एंड गुड, यू आर लकी इनफ, गो अहेड, राइट. आप चूज कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए डिसीजन. बट इन केस अगर जो इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रेंड आया है और वो स्किल सेट्स या स्ट्रेंथ मेरे साथ मैच नहीं करती है, बट मेरा इंटरेस्ट तो आएगा क्योंकि मुझे हाई पेड जॉब चाहिए, राइट. तो वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू अपडेट माई सेल्फ विद इंडस्ट्री ट्रेंड. मेरी स्ट्रेंथ को मुझे मोल्ड करना पड़ेगा, मुझे वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी. सो दैट्स वेयर आई से कि जब आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करो तो देखो इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है. आने वाले 5 साल में जब आप करियर बनाओगे, ये ट्रेंड कहाँ सेट करेगा, फोरकास्टिंग करो, थोड़ी समझो, और अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन चुनो, एंड देन डोंट लुक बैक. Okay, so for specialization, you need to see for interest, Great. strength, Great. and then trends. Amazing. As we now know, MBA is a terminating program and they train you to be market ready. Students run after placements and the pressure is real. So, as an experienced individual, would you like to give our student a mantra for desired placement? Sure. Good. I do agree. Pressure is real. MBA को इसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है. There is no exact mantra for desired placement. Right? कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी, राइट. यू कैन नॉट डू कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं बदलेगा. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. तो इफ आई हैव टू स्टार्ट विथ फर्स्ट थिंग, आई वुड से फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्ट अर्ली. डोंट वेट फॉर द प्लेसमेंट ईयर टू कम. स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर. आप जैसे जैसे उसके लिए ग्रेजुअली वर्क करना चालू करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में तभी चेंज आएगा. पर्सनालिटी ओवरनाइट नहीं बदलती. तो जैसा मैंने आपको पहले बोला था, MBA इज अ personality changing program, so it will take time, so you will have to start early. Second is small but consistent efforts. क्या होता है, हम efforts करते हैं, result नहीं दिखता है, हम stop कर देते हैं. So it is always better to give small but consistent efforts that will change you and help you what you have initiated. अगर आपने एज एन अर्ली समथिंग, आपने कोई प्रोसेस इनिशिएट किया है, उसको बंद मत करिए, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल लर्निंग हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर, आप उसको चालू करोगे, आप उसको पढ़ोगे, पहले दिन अजीब लगता है कि एक हार्ड कॉपी हाथ में आती है, सिंस स्टूडेंट्स आर वेरी एक्वेंटेड विथ मोबाइल एप्लीकेशंस, राइट. तो किसी और तरीके से करिए, बट उसको लर्निंग को चालू रखिए. एंड द थर्ड इज, देखिए आपने जहाँ एडमिशन लिया है, right, maybe a batch size of 120, which is generally very common in an MBA program. So you have to be odd out of those 120 students, one out of those 190, right? So you need to differentiate yourself. तो पहली चीज हो गई start early,
दूसरा स्मॉल बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, कंटिन्यूसली बिल्ड करते रहिए, कुछ ना कुछ करके अपने आप में ऐड ऑन करिए। एंड थर्ड इज डू समथिंग विच अदर्स आर नॉट डूइंग। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने आप को, वो आपकी यूएसपी है। मैं आपको बोला था आपका इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ, तो वो चीजें आपको जो है वो डिफरेंशिएट करेंगी। एंड वंस यू आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, फॉर श्योर आपका डिजायर्ड प्लेसमेंट जो है, यू हैव डन दैट मंत्रा एंड यू हैव फॉलोड इट। Now you know the desired mantra for placements. Sir, now the charisma question that everyone wants to know. Okay. If you have to take MBA program in today's era as a student, what would you do? What would be your path towards success? And can you share your roadmap with us? Okay, sure. See, if in today's world I have to opt for an MBA program और मैं किसी MBA program को कैसे pursue करूँगा, so I would start focusing on firstly my strength, right? कि मेरी strength क्या है, वो मुझे कहाँ से पता लग सकती है। I should have a mentor. एक mentor का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले भी था, आज भी है। एक मेंटर कोई भी हो सकता है, मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई फैकल्टी आपकी, या एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जब आप MBA में एनरोल करते हो, यू माइट गेट अ मेंटर, देयर अ फैकल्टी मेंटर। आप उनसे कनेक्ट करिए, राइट? एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर गोल्स, उनको स्पेसिफिक करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, एज आई अर्लियर सेड, क्योंकि वो आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने में मदद करेंगी। तो इनिशियल 3 मंथ्स जो होते हैं, आई वुड फोकस ऑन दीज थिंग्स, माई पर्सनल एज एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट 3 मंथ्स आई वुड फोकस ऑन व्हाट इंडस्ट्री ट्रेंड्स आर एंड अकॉर्डिंगली एम आई अपग्रेडिंग माई सेल्फ, या तो वो मेरी स्ट्रेंथ से मैच होंगी, अदरवाइज आई विल हैव टू अपग्रेड। दैट विल बी माई सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एक जो रेगुलर, जो मैंने आपको बोला, एक हैबिट होती है जो कि चाहे केस स्टडीज कॉम्पिटिशंस हो, छोटी छोटी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन होती है, मैं उनका हिस्सा बनने की कोशिश करूंगा। मे बी पार्ट ऑफ अ टीम, और मे बी इफ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द टीम ऑल्सो, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा अगर एक MBA प्रोग्राम के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? प्रॉब्लम को डिस्कस करना अगर अप्रोच हो जाएगा तो आप MBA का एसेंस लूज करते हैं। तो माई अप्रोच वुड बी हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम कुड बी इट कुड बी अ टेक्निकल प्रॉब्लम, इट कुड बी ह्यूमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, या वो लोकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना आप एक्सपोजर ले सकोगे, आप इंटर्नशिप में जाइए, लाइव प्रोजेक्ट्स करिए, आपके पास समय की कमी होनी चाहिए, राइट? तो जब आप 2 साल अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देते हैं, इफ़ आई हैव टू परस्यू दिस वे द MBA प्रोग्राम, मेरा गोल यही होगा कि 2 साल के बाद मेरी पर्सनालिटी में क्या चेंज आते हैं वो मेरे गोल्स में 3 मंथ्स में सेट करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू अचीव दैट, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अ एंड रिजल्ट ऑफ इट। चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो अच्छी प्रोफाइल पे प्लेसमेंट हो, चाहे वो अच्छे पैकेज का प्लेसमेंट हो, एवरीथिंग इज एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट यू डिड इन योर 2 years, राइट? इट इज़ लाइक अ जर्नी। तो उस जर्नी को आप जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना अच्छे से उसको जियोगे, जितना उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करोगे, दैट विल पे यू ऑफ। Having such an insightful session about personality evolvement and depths of market in MBA program, so what makes it special to do an MBA program at CDGI? Oh, so if I talk about CDGI, right? See, MBA program at CDGI offers something different, of course, right? That's why it is special. So we believe in 3 things at MBA department, if I talk about. So first is education, right? As I discussed earlier also. So the technical knowledge is really important, right? So having experienced faculty members is something really very important, which we have in the department. So they guide you through, and they help you, they mentor you, right? So they are acting as a mentor. Every student gets a mentor in the CDGI MBA program. So that is something, they help you in the initial phase of your MBA program to decide your goals, understand your USPs, understand yourself, and map your targets. So that is one thing, the education. The second E we believe is the exposure. The students are exposed to internships, on-job trainings, multiple events to manage, to organize, rallies. There are n number of things, including for society, for industry. So a student get a big exposure from the department. And the third thing is experience. Now experience is when student goes for an internship,
they work for a long duration, not only for the compliance that okay 30 days की एक इंटर्नशिप कर ली, 30 डेज में आपको कुछ सीखने को नहीं मिल पाता। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके एक रूटीन ही डेवलप कर पाते हो कि इतनी बजे पहुंचना है और इतनी बजे निकलना है। जब सीखने की बात आती है तब तक आप वापस आ जाते हो। सो अ 30 days internship program doesn't actually help. So we focus on minimum 3 months or 6 month internship program wherein student actually get an exposure and experience under the people who are really working and taking life decisions. So that is something really important. We don't prepare student for the first job. ये जो मिसकंसेप्शन मैंने आपको तब भी बोला था कि स्टूडेंट को लगता है GDPI करेंगे पहला जॉब मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होती है? फर्स्ट जॉब के बाद, when you don't have an academic support, right? Lot many students face this. So at CDGI, we train students for the career to progress, not only for the first job. Cracking a first job is really easy, but sustaining there and growing and making significant contribution in the organization, right, is something which is really very important, which we make them learn to how to pursue and how to progress through the year. So at CDGI, we look for a complete ecosystem wherein an MBA student is coming, and while going out, they may be targeting placements, they may be going for their family business, they may be going for entrepreneurship, they may be going for startups, any kind of thing what they look for. So each dimension is covered, and that's what makes MBA at CDGI really very special. ये जो 2 साल की जर्नी है वो स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो दे से द मोस्ट थिंग विच दे लर्न और विच दे एंजॉयड वाज कि सर जितना ज़्यादा हमें क्लास अटेंडेंस 9 to 4 का ये जो टाइम था, इट इज़ एक्चुअली पेइंग ऑफ व्हेन वी आर सिटिंग इन द क्लास फ्रॉम 9 to 4 PM, right? It actually helps us in performing industry when we have to work from 9 to 6 PM. So that becomes really easy for them. So that's what I said, prepare students for a longer run, not for only for the first job. So the 3E, education, exposure and experience, that makes MBA program at CDGI really very special. Okay, sir. So from the conversation we had today, what I learned is MBA बस एक qualification नहीं है, it is a transforming journey. और स्टूडेंट्स जो इसका एकदम यूटिलाइज करते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जो क्यूरियस रहते हैं, Exactly. जो लर्न करते रहते हैं बिल्कुल. और जो अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं. Perfectly. So Swadiksha, it was really wonderful to have a conversation with you, and thank you for having me We are here. pleased to have you here, sir. Thank you so much.